Hello everyone. So only 2 months are left for your upcoming NEET PG exam. The exam is on 3rd March. Today is 23rd December. So you have around 2 months time, to prepare an effective revision schedule for your upcoming exam. And in this video, I'll tell you what should be the tips and tricks to plan an effective revision, which subjects to focus on, how I prepared in these 2 months during my PG preparation time, whether GTs are so important as they are told, whether PYQs, the hottest topic right now, are they overrated or what is the correct way to do them, and some more tips and tricks, my study schedule and what study schedule I recommend for the next 2 months. So hold on to this video. This video will be a little lengthier. I'll touch upon each and every detail which you need in these last 2 months to get a good rank in NEET PG. So first of all, who is this video for? किसके लिए बनाया ये video? So this is not intended for any student who is on a right path, who has already done one reading, already completed one revision of the entire 19 subjects, and is giving GTs properly, revising through a properly made schedule. This video is specifically for those who were like me during NEET PG, जिनके कुछ subjects अभी भी pending थे. So I remember that during my NEET PG preparation time, the exam, if it was on March, I still had around 10 subjects to complete. So this video specifically for those जिनके कुछ subjects अभी बचे हुए हैं, कुछ subjects strong हैं, कुछ subjects weak हैं, but they're grappling, they're anxious, they don't know how to approach these 10 big subjects. So in this video, I'll tell you how to do them. Now, first of all, at the outset, I'd like to say that, please don't complicate PG preparation. आजकल इतने ज़्यादा resources हो गए हैं, इतने ज़्यादा apps, इतने ज़्यादा coaching institutes, इतने ज़्यादा resources in general हो गए हैं that there is not a dearth of knowledge definitely on the internet and in the market. What is required is to have a good focus, and PG preparation boils down to at basic having a good foundation. And how will you have a good foundation? That whatever subjects you are weak in, you have to make them strong. It is as simple as that. It is not complicated at all. मुझे समझ नहीं आता कि फालतू में क्यों PG preparation इतनी complicated हो गई है right now. So at the outset, make your weak subjects strong, and use your strong subjects as leverage to buy time. Now what do I mean by this? So for example, जिन subjects में आप weak हो, I'll tell you what were my weak subjects, how I tackled them. उनको अभी भी टाइम है, आई वुड से, कि मेन नोट से पढ़ो. ठीक है, अभी भी टाइम है कि उनके मेन नोट्स पढ़ो. स्पेशली आई टेल यू हाउ टू रीड मेन नोट्स. एंड साइमल्टेनियसली जब आप उन सब्जेक्ट्स को मेन नोट से पढ़ रहे हो, साइमल्टेनियसली आपको कंसाइज करना है ना. बहुत सारे लोग यहीं पर गलती करते हैं कि एक बार मेन नोट्स पढ़ तो लेते हैं, बट उस टाइप पे कंसाइज करते नहीं है. दे थिंक कि कंसाइज करने वाला प्रोसेस रिविजन जब हम करेंगे तब आएगा. नो, द कंसाइज प्रोसेस स्टार्ट्स राइट नाउ. जब आप मेन नोट्स पढ़ रहे हो, इसी में आपको मार्क करना है कि मुझे नेक्स्ट बारी में क्या पढ़ना है. नाउ बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने क्या किया था कि इफ आई एम रीडिंग बायोकेमिस्ट्री, आई वाज वीक इन बायोकेमिस्ट्री, तो आई ओपन अ रिव्यू बुक ऑफ बायोकेमिस्ट्री. सामने नीचे फर्स्ट एड खोली. सो फर्स्ट एड वाज माय कंसाइज नोट्स का रिसोर्स, एंड रिव्यू बुक वाज माय मेन नोट्स का रिसोर्स. आजकल मार्केट में थोड़ा अलग है. अगर आप किसी कोचिंग ऐप से सब्सक्राइब करो, किसी कोचिंग सेंटर से सब्सक्राइब करो, तो आपका मेन नोट्स का सोर्स थोड़ा अलग होगा. तो उनको मेन नोट्स को अपने मेन नोट्स का सोर्स बनाओ. और कंसाइज मटेरियल को या तो आप फर्स्ट एड यूज कर सकते हो, जो कि मुझे बहुत पसंद है, रिविजन नोट्स को बेस बना सकते हो, या फिर टीएनडी को बेस बना सकते हो. बट एक बेस आपको बनाना पड़ेगा कंसाइज मटेरियल का. नाउ जब आप अपने मेन नोट्स पढ़ रहे हो फॉर योर वीक सब्जेक्ट्स, साइमल्टेनियसली एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो कि रैपिड रिविजन नोट्स में, फर्स्ट एड में या टीएनडी नोट्स में नहीं दे रहे, कि वहीं पर उसको ऐड करो. एंड दिस नीड्स टू बी डन वाइल यू आर रीडिंग योर मेन नोट्स फॉर योर वीक सब्जेक्ट्स, ताकि जब आप दोबारा इन नोट्स को पढ़ो, आपको मेन नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डू मिस्टेक, क्योंकि इस प्रोसेस में ना टाइम लगता है. आपको पता है कि जब रिविजन नोट्स को मुझे कंसोलिडेट करना है अच्छे 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 नॉलेज से, तो उसमें टाइम लगता है. यही बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं कर पाते. ये आपको करना पड़ेगा. गिव मी अ प्रॉमिस दैट यू विल कंसाइज योर मेन नोट्स वाइल रीडिंग देम. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप. नाउ जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं आपके, जैसे मेरा एनाटॉमी वाज अ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, सो उसके यू कैन रिलाई ऑन रिविजन नोट्स, बिकॉज उसका बेसल नॉलेज, बेसल अंडरस्टैंडिंग, बेसिक फाउंडेशन आपके दिमाग में ऑलरेडी है. नाउ I'll tell you my story. So when I decided to take a drop, so during my internship attempt, my rank was 187, which was, I agree, a decent rank.
बट ड्यूरिंग आर टाइम एम्स, पीजीआई, निमहांस, सारे आईएनएस के एग्जाम अलग होता था. सो एट 187 also I was not getting the branch of my choice, so I decided to drop. And also I decided to drop because I believed that this is not my best attempt. This is not my best attempt. I am capable of giving a better exam with the better preparation in my mind. So I decided to take a drop, and I took a pen and paper and I jot down कि यार मैंने 5.5 साल MBBS करी है, ऐसे झक तो नहीं मारा है, तो मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स क्या हैं, मेरे वीक सब्जेक्ट्स क्या हैं. तो I wrote down that my strong subjects are, yes, anatomy, surgery, orthopedics, derma and psyche. ये सब्जेक्ट्स मैंने एमबीबीएस में अच्छे से पढ़े हैं, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से पढ़े हैं, इसके नोट्स भी पढ़े हैं कोचिंग के, वो कंसाइज भी कर रखे हैं. तो ये मेरा एक बैकग्राउंड था कि ओके, these 5 subjects I can rely on and I'll only do them from my concise notes. So आज की लैंग्वेज में रिविजन नोट्स, रैपिड रिविजन नोट्स, टीएनडी नोट्स. नाउ जो वीक सब्जेक्ट्स थे मेरे, अभी भी बहुत सारे वीक सब्जेक्ट्स बचे हुए थे. व्हाट आई डिड दैट, मैंने कोई शॉर्टकट नहीं अपनाया तब. frankly I knew कि मेरा बायोकेम was a weak subject, so I made sure कि जो 5 दिन मैं बायोकेम को पढ़ूंगा, I'll read them from the review book, and साथ साथ I had opened my first aid. ठीक है, I had opened my first aid. I'll show my biochem first aid. ये जैसे मैंने यूरिया साइकिल मेटाबॉलिज्म का अपना फर्स्ट एड को कंसोलिडेट किया था वाइल रीडिंग माय मेन नोट्स. तो जब मैं मेन नोट से यूरिया साइकिल पढ़ रहा हूँ, आई एम जस्ट रीडिंग द मेन नोट्स, आई एम नॉट अंडरलाइनिंग, एनोटेटिंग एनीथिंग देयर, आई एम जस्ट जॉटिंग डाउन एक्स्ट्रा पॉइंट इन माय फर्स्ट एड कि अच्छा, जब मैं, क्योंकि ये छोटा मटेरियल है, मुझे छोटा मटेरियल पढ़ने में कम टाइम लगेगा. ठीक है, सो whenever I'll revise यूरिया साइकिल फ्रॉम फर्स्ट एड, I'll read whatever is written, प्लस जो मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट लिखे हैं अपने मेन नोट से, वो यहीं पर मैं रिवाइज भी कर लूंगा. सो दिस बिकम्स माई कंसोलिडेटेड रिसोर्स. नाउ एट द आउटसेट, गेटिंग अ गुड रैंक boils down to having a good foundation and a consolidated material. I keep on re-emphasizing this. I think Aditya has multiple times said this also, that revision in the last 10 days is the key. एंड ये लास्ट 10 डे का रिविजन मटेरियल ना आपको अभी बनाना पड़ेगा. आपको अभी बनाना पड़ेगा जब आप रिवाइज कर रहे हो या फिर आप अपने वीक सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो. अभी इज द टाइम, नाउ इज द टाइम टू मेक दीज कंसोलिडेटेड लास्ट 10 डे रिविजन नोट्स. बाद में नहीं कुछ हो पाएगा इनका, बाद में नहीं बनेंगे ये नोट्स. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉज रीडिंग बायोकेम, आई टुक अ रिव्यू बुक. Similarly for micro, I took a review book and consolidated my first aid. I'll put my first aid also in the description. You can check it out to see how I annotated it. Don't use my first aid. Use it as a guide, कि consolidated notes बनाने कैसे. That's it. Similarly, I was bad in physio. मतलब not bad, but मेरी weak subject थी physio. So I again made it a point कि अच्छा, जो कोचिंग क्लास के नोट्स थे, मैंने उनको एक बार क्विकली पढ़ा एंड साथ साथ रिविजन नोट्स में उनको एनोटेट कर दिया. आई यूज्ड अगेन फर्स्ट एड फॉर फिजियोलॉजी. Now, forensic was my weak subject, but it became one of my strongest subjects because I knew forensic कितना important subject है. 8 questions आने हैं उसमें से, 3 दिन लगते हैं forensic पढ़ने में. 8 के 8 क्वेश्चन सही हो जाएंगे अगर आपने forensic पढ़ ली. It's a very very high scoring subject. I will strongly recommend you to spend time in forensic medicine. Now again pharma, I had attended coaching in my 4th 5th semester of pharmacology. And वो again मेरे base notes थे and उनको I consolidated in my first aid. So for most of the subjects that I've mentioned here, obs, gynae, peds, medicine, ENT, ophtha, anesthesia, path, PSM, I used main notes and simultaneously consolidated them in a revision note. So आपके सामने क्या होगा, एक रिव्यू बुक या मेन नोट्स खुले होंगे एंड पैरेलली आपके नीचे आपके रिविजन नोट्स खुले होंगे ताकि आप उसमें कंसोलिडेट कर पाओ. ठीक है, नाउ दिस कैन बी डन फॉर फर्स्ट सेकेंड ईयर सब्जेक्ट्स लाइक माइक्रो, बायोकेम, पैथ, फार्मा, पीएसएम ऑल्सो, बट इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मेडिसिन एंड सर्जरी. नाउ अगर अभी आपके मेडिसिन एंड सर्जरी पेंडिंग है, स्पेशली मेडिसिन, तो आई वुड से कि डोंट स्पेंड टाइम ऑन मेडिसिन. ठीक है, मेडिसिन के बहुत सारे क्वेश्चंस इंटीग्रेटेड होते हैं, पैथ, फार्मा, फिजियो, बाकी सब्जेक्ट से, पीड से स्पेशली. एंड उसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपके, लेट्स से आपने कोई टीएनडी लगाई है या आपने कोई रैपिड रिविजन कोई प्रोग्राम लगाया मेडिसिन का, सो देयर आर लॉट ऑफ 5 days, 6 days, 10 days क्लासेस ऑफ मेडिसिन.
you can attend them and unke notes you can read. Please don't try to read medicine altogether. Now second important thing that you can do in medicine ki you can focus on high yield topics. For example, emergency से आपको पता है question आना ही आना है, ECG, acid base, abnormalities, इन सब से आना ही आना है. तो ये सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ लो मेडिसिन के. बट फॉर अदर सब्जेक्ट्स अगर वो वीक हैं, स्टिल देयर आर 2 मंथ टाइम. आई एम गिविंग यू टाइम टिल 1st February. ठीक है, लिख लो ये टाइमलाइन. 1st February तक अभी भी आपके पास टाइम है. 5 दिन. जो भी आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं, स्पेशली कौन कौन से वीक सब्जेक्ट्स, हाई स्कोरिंग वीक सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? हाई स्कोरिंग वीक सब्जेक्ट्स फार्मा, माइक्रो, बायोकेम, ऑब्सकाइनी, पैथोलॉजी एंड फोरेंसिक. ठीक है, ये वीक सब्जेक्ट्स अगर हैं तो देयर यू स्टिल हैव टाइम. ठीक है, यू स्टिल हैव टाइम. 5 days each subject, 5 into 6, 30 days. Till 28th February you still have time to make them strong. ठीक है, अभी भी टाइम है. पढ़ लो मेन नोट्स, रिविजन नोट्स नीचे, एंड जो एक्स्ट्रा चीज़ है उसमें जॉट डाउन करो. ठीक है, मैंने कैसे अपनी फर्स्ट एड जॉट डाउन की थी? फॉर एग्जांपल दिस इज माय माइक्रोबायोलॉजी का पेज फ्रॉम फॉर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस. तो मैंने क्या किया, मेन नोट्स खोले, हैरिसन का जो या मेडिसिन के जो माइक्रोबायोलॉजी रिलेटेड नोट्स थे वो इसमें ही ऐड कर लिए, TND के नोट्स भी इसी में ऐड कर लिए, ताकि ये मेरा कंसोलिडेटेड मटेरियल हो जाए. जब मैं 1st February से 28th February या 24th February तक तब मैं रिवाइज करूंगा, तब मैं बस ये पढ़ूंगा ताकि मेरी पूरी माइक्रो एक दिन में हो जाए. यही टारगेट है कि कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें पढ़ना. वो कैसे होंगी? इफ़ यू हैव कंसाइव्ड योर मेन नोट्स ड्यूरिंग योर फर्स्ट रीड. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. ठीक है, नाउ स्केड्यूल क्या हम फॉलो करेंगे? सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप आर स्टार्ट कर रहे हो, आपने 6 या 7 वीक सब्जेक्ट्स अपने आइडेंटिफाई करे, यू हैव अग्रीड कि येस आई विल गिव 5 to 6 days पर सब्जेक्ट टू मेक देम स्ट्रॉन्ग. 23rd December से 31st January तक you read your week subjects. So from 1st Feb to 24th Feb आप first revision करो, and the last 10 days you have to again read the whole 19 subjects. This is the timeline. ठीक है, now कुछ FAQs. now first aid कौन कौन से subjects के लिए use कर सकते हैं? So I won't say कि for all subjects, because सब subjects के लिए complete नहीं है. For example pharma, path के लिए it's not complete, it's good, but it's not complete if you're reading it for the first time. Now आप revision notes की तरह कौन कौन से subjects को first aid में use कर सकते हो? first aid के लिए micro, biochem, biostats in PSM and psychiatry. You know, for these 4 top subjects I would say that first aid can be used as a रिविजन प्लेटफॉर्म जिस पे आप एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर सकते हो. फॉर अदर सब्जेक्ट्स यू कैन यूज योर रिविजन नोट्स एज अ प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर आप अलग एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर सकते हो. नाउ सम FAQs. PYQs कब करने हैं? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप इन वीक सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, to start, before starting these subjects or a night before, you do 3 years NEET PYQs, 2 years FMG PYQ and 3 years INICET PYQs. क्वेश्चन सॉल्यूशन, क्वेश्चन सॉल्यूशन, क्वेश्चन सॉल्यूशन. एक्सप्लेनेशन अभी नहीं पढ़ने हैं एट ऑल. आपका अभी एम क्या है कि हमें देखना है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, ताकि जब मैं अपने मेन नोट्स पढ़ूं उस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए. ना केवल PYQs करने हैं कि नो, नॉट एट ऑल. केवल PYQs नहीं करने हैं. PYQs एक बूस्टर की तरह आपको यूज करना है कि ये क्वेश्चंस मेरे नहीं गलत होने चाहिए. सो क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर. सो आई टेल यू हाउ आई डिड PYQs ड्यूरिंग माय टाइम. ठीक है, हमारे टाइम पे PYQs इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी. इट वॉज अ बिग थिंग बट इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी. सो आई यूज टू डू PYQs while going to dinner, while having dinner, going through the our ground, एम्स का ग्राउंड था, जब वहाँ वॉक कर रहा था डिनर की तरफ जाते हुए, तब आई जस्ट यूज टू स्क्रॉल PYQs. अच्छा ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसका आंसर ये था, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसका आंसर ये था. एंड जल्दी जल्दी फटाफट हो जाते हैं यार PYQs में. बहुत टाइम नहीं लगता. आपको लगता है कि हम सारे एक्सप्लेनेशन बैठ के पढ़ेंगे, सबका देखेंगे, नहीं. क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, दैट्स इट. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रैंड टेस्ट. हाउ टू रिव्यू ग्रैंड टेस्ट. ठीक है, बहुत सारे लोगों की ये क्वेरी आती है कि सर माई स्कोर्स आर स्टक इन ग्रैंड टेस्ट, आई एम नॉट एबल टू स्कोर वेल इन ग्रैंड टेस्ट. 115, 120 इतना ही स्कोर आ रहा है आउट ऑफ 200. So first of all, it is very important that you review the grant test the same day by having a copy by your side. एक grant test review copy बनाओ. जो जो आपके मिस्टेक्स हुई, जो जो टॉपिक्स आपको क्वेश्चंस आपको लग रहे थे मेरे गलत हुए, उन टॉपिक्स को लिखो,
एक आपके पास सोर्स बनेगा कि अच्छा ये मेरे टॉपिक्स हैं जो वीक हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके एसिड बेस्ड एब्नॉर्मैलिटी से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं मेडिसिन में, ठीक है, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं मेडिसिन में, तो वही पढ़ना है ना, तो यू नीड टू हैव अ बुक टू रिव्यू जीटीज। नाउ समटाइम्स पीपल से कि सर मेरे जीटीज में स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है। यार जीटीज को डोंट टेक इट एज अ टेस्ट, टेक इट एज अ लर्निंग सोर्स कि अच्छा ये क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो मैंने पढ़ा है टॉपिक उससे ये क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये टॉपिक मेरा वीक है। यू नो आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माय सीनियर्स जिसकी बहुत अच्छी रैंक थी, and he was my senior in PGI radiology as well. And you know what did he say? He said that and I never used to submit a grand test. ठीक है, मुझे बहुत डर लगता था कि मेरी खराब रैंक आएगी, मेरा पूरा कॉन्फिडेंस शेक हो जाएगा। सो आई यूज टू गिव ग्रैंड टेस्ट, यूज टू असेस इट, क्योंकि मेन पर्पस तो वही है ना, असेस करना। एंड आई यूज टू राइट कि अच्छा ये क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं, ये मेरे टॉपिक्स गलत हुए हैं, इन पे मुझे फोकस करना है। सो यूज ग्रैंड टेस्ट एज अ सोर्स ऑफ लर्निंग दैट व्हाट आर योर वीक टॉपिक्स। ठीक है, उसके टेस्ट ना आपकी मेन रैंक रेप्लिकेट करते हैं और ना आपको बताते हैं कि आप कितने अच्छे हो। ठीक है, इट जस्ट टेल्स यू कि अच्छा ये आपके वीक टॉपिक्स हैं, ये आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं। नाउ टू मेनी ग्रैंड टेस्ट कैन ऑल्सो बी समटाइम्स हार्मफुल, कि आप बस ग्रैंड टेस्ट दिए जा रहे हो, मेन नोट्स रिविजन नोट्स आपने अच्छे से नहीं पढ़े हैं, एंड आप ये सोचो कि ग्रैंड टेस्ट देते रहूँगा मुझे एग्जाम की प्रैक्टिस होती रहेगी। नो, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आपने एक बार ऑलरेडी सब कुछ पढ़ लिया है, एक बार रिवाइज हो चुका है, देन गिविंग every week or 2 week grand test is useful, yes, because it becomes a source of revision. But if you are someone who is watching this video, I'm sure अगर आपके कुछ कुछ सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं तभी आप ये वीडियो देख रहे हो, तो उस टाइम पे ग्रैंड टेस्ट आपका बहुत डीमोरलाइजिंग होगा। अभी जस्ट फोकस अपॉन मेकिंग योर वीक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग। अभी है टाइम, ठीक है, 2 महीने इज नॉट अ वेरी लेस टाइम, अभी है टाइम पढ़ने का। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, छोटी कॉपी। और छोटी कॉपी बहुत ज़रूरी है बनाना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जब हम मेन नोट्स पढ़ रहे होते हैं विच नीड्स टू बी मग्ड अप। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्कोरिंग सिस्टम्स हैं, कर्व 69 है, और स्कोरिंग सिस्टम्स हैं, क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हैं, ट्रायड्स हैं, नहीं याद रहते यार, 19 सब्जेक्ट्स हैं, नहीं याद रहते। तो यू नीड टू हैव अ छोटी कॉपी कि ये वोलेटाइल टॉपिक्स हैं। अभी व्हेन आई एम अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट, I won't spend time, I won't waste time in mugging up these rectifying topics. I'll just write them down in this choti copy whenever I want to revise it before a grand test. Yeah, 3 hours before sleeping the night before my exam. So for example, 3rd March को आपका एग्जाम है, 2nd March की रात को 7 बजे से 10 बजे के टाइम में मैं क्या पढ़ूंगा, मैं ये छोटी कॉपी पढ़ूंगा, मोस्ट volatile topics, so that it becomes fresh in my mind and next day I'll just vomit it out. That's it. उस पर्पस के लिए होती है छोटी कॉपी। मेक इट राइट नाउ व्हेन यू आर रिवाइजिंग और यू आर मेकिंग योर मेन नोट्स। ठीक है, यू आर रीडिंग योर मेन नोट्स, कि पता हो कि ये मुझे अभी नहीं याद करना है, ये रट में बाद में लूंगा। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, और आई हैव लेबल्ड इट एज 3.1 पॉइंट, कि क्वेश्चन बैंक कौन सा करना है। पूरा क्वेश्चन बैंक करना है कि बस कस्टमाइज करना है, कि बस PYQs करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पूरा क्वेश्चन बैंक नहीं करना, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग अ फुल क्वेश्चन बैंक राइट नाउ। डेली टारगेट रखो कि 50 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, 50 to 70 क्वेश्चंस करने हैं। अगर TND ज्वाइन कर रहे हो तो वेल एंड गुड, उसमें वो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट कवर हो जाते हैं उस सब्जेक्ट के, या फिर आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे लो उस सब्जेक्ट का जो आप, लेट्स से इस दिन मैं पैथोलॉजी पढ़ रहा हूँ, सो कौन से क्वेश्चंस आई डू सब्जेक्ट वाइज टेस्ट ऑफ पैथोलॉजी। 50 to 70 क्वेश्चंस का कस्टम मॉड्यूल बना लूंगा मैं, एम्स नीट FMG के PYQ बेसिस पे। ठीक है, नाउ BTR ORR RRR ATS DVT वाइब ये करने हैं कि नहीं करने, इतने सारी चीज़ें चल रही है मार्केट में। सी फ्रैंकली डिपेंड्स अपॉन योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, अगर इफ यू आर समवन हु ऑलरेडी हैज डन रिविजन ऑफ हिज और हर मेन नोट्स और रिविजन नोट्स, यू डोंट रियली नीड दीज रिसोर्सेज। ठीक है, ये रिसोर्सेज उन लोगों के लिए हैं जिनकी अभी कुछ कच्ची पक्की प्रिपरेशन चल रही है, दे आर नॉट इन अ स्टेट to make a concise consolidated revision notes, and if you're someone जो कि ऐसा है, so for you these resources will suffice. ठीक है, will help you, not suffice, will augment your studies, will augment your preparation. Now fifth very important point, that right now prepare for the last 10-day revision. Be ready with the material कि last 10 days before the exam मैं क्या पढ़ूंगा। ठीक है, now sixth important FAQ, a lot of student ask me how many hours to study right now. See, अभी टाइम है आगे बढ़ने का। ठीक है, अभी टाइम है
पूरा 100% देने का। जैसे जीतू भैया बोलते हैं ना उसमें कोटा फैक्ट्री में कि नर्सरी में टॉप करके क्या क्या उखाड़ लोगे, ठीक है, वैसे ही एमबीबीएस में टॉप करके क्या उखाड़ लिया तुम लोगों ने, ठीक है। अभी टाइम है, ठीक है, अभी टाइम है रैंक लाने का, अभी टाइम है पूरा 100% देने का। तो 10 to 12 hours पढ़ो। Even I used to study at least 10 hours, and in the previous video also you can check out that video I have made ki how to study 12 hours a day. And this was my study schedule for the last 2 months, that how I used to study for the last 2 months. So during my initial 10:30 to 1:30 time, I was a night owl. I used to sleep by 2:30 at night. So I used to wake up a little late, 10:30, 10:30 tak, ठीक है. So if I sit at 10:30 a.m. in the morning, the first session I made sure that it's a 3 hour session, because मेरा एग्जाम 3 घंटे का है. So इसकी भी आदत मुझे भी डालनी पड़ेगी, ठीक है. To sit continuously for 3 hours and be active throughout those 3 hours, you have to practice that as well. So first session has to be 3 or 3+ hours. एंड मॉर्निंग में आपका सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव टाइम होता है, आपका एग्जाम भी मॉर्निंग में होगा. सो यू मेक श्योर दैट योर फर्स्ट 3 hours ऑफ योर स्टडीज आर द मोस्ट प्रोडक्टिव ऑफ द डे. सो मेन नोट्स पढ़ो, जो सब्जेक्ट आपको आज पढ़ना है. फॉर एग्जाम्पल यूर रीडिंग फोरेंसिक, तो फर्स्ट 3 hours you read your notes of forensic subject of the day. Now after a while you go for lunch के बाद थोड़ी थोड़ी नींद आने लगती है. So you can watch, let's say, some videos of a previous year topic which is important, and simultaneously read its notes. Now 7 to 9 थोड़ा सा और productivity कम हो जाती है day में. So you can watch some passive learning resources which are available on YouTube. Alan runs a guest series program for FMGs and a TND on YouTube as well. You can check that out, and there are other resources as well available on YouTube. Now नाइट में क्या पढ़ना है, ठीक है. नाइट में इज द टाइम देन व्हेन यू डू क्वेश्चंस, ठीक है. नाइट में आपको PYQs करने हैं, नाइट में आपको शॉर्ट सब्जेक्ट वाइज टेस्ट करने हैं, क्योंकि जो आपने सब्जेक्ट पूरे दिन में पढ़ा है, नाउ इज द टाइम कि आप उसके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एंड PYQs करो. एंड जो आपने दिन में नोट्स पढ़े हैं एक बार दोबारा रिवाइज करो. सो आपका पूरा दिन आपका प्रोडक्टिव होगा. यू विल हैव सम टाइम फॉर योर सेल्फ. आई हैव गिवन 1 hour, half an hour, good 1.5 hour breaks as well in this time schedule. You can follow this if you want, or you can make your own study schedule. Now I haven't made a day wise schedule of the subject कि इस दिन पे ये पढ़ो, इस दिन पे ये पढ़ो, because that is very personalized. आपकी जो subject strong है आप let's say उनको कम पढ़ोगे, जो weak हैं you want to read them more. So वो study schedule आप अपना खुद बनाओ, but I would still say कि लास्ट 10 days रखना, 24th फेब से 3rd मार्च तक, जिसमें मुझे सारे सब्जेक्ट्स दोबारा पढ़ने हैं. 1st फेब से 23rd फेब तक एक सेकेंड रिविजन का टाइम रखो. और अभी जो वीक सब्जेक्ट्स हैं टिल 31st जनवरी, जो भी वीक सब्जेक्ट्स अभी हैं, यू स्टिल हैव टाइम टू कवर एटलीस्ट 5 to 6 वीक सब्जेक्ट्स अच्छे से फ्रॉम योर मेन नोट्स. जस्ट रिमेंबर कि जब मेन नोट्स पढ़ रहे हो तो साइमल्टेनियसली उसी टाइम पर कंसाइज भी करना है, ईदर ऑन योर रैपिड revision notes, your first aid, or a TND, whatever you are doing. So that's all from my side. Thank you. And